How are you all doing? I hope आप सब अच्छा कर रहे हैं. You are doing well. So welcome to another session of BARC and NPCIL mock interview series. And today with me in our panel we have Ankur Bansal sir. Hello sir. Hello, sir. And the candidate is Aryan. So Aryan, how are you? I'm fine, sir. Okay, so would you like to give us your introduction? Yes, sir. So my name is Aryan Mandya, and uh, I did my graduation from IIT Roorkee in chemical engineering. My father is a farmer and my mother is a housemaker. Sometimes helps us, my father, in a farming. I have one elder brother that is preparing for competitive exams. Now, talk about my hobbies. I like reading books and do physical workout. That's all about. Okay, wonderful. So आपका which interview is scheduled? BARC, NPCI, both? NPCA. NPCA. NPCI. Okay, okay. So do you have prepared any subject? Yes, sir, I prepared uh, three subjects to three subjects. Which one? Sir, heat transfer, mass transfer, and fluid mechanics. Only 3 subjects you have prepared. Then I prepared these a lot, but other also I prepared. Well, actually, you have to write 5 names, but minimum 4 will be better. Sir, uh, like is reaction engineering. Chemical reaction engineering. Yes, yes. Okay, so you are preparing for NPCIL. तो उसी से start करते हैं. Why you want to join NPCIL? Since you said you are BTech from IIT Roorkee, right? Yes, sir. So you must have got some great opportunities there. Then Yes, why sir. you want to go in a NPCIL? So, like as a chemical engineer, I like environmental friendly and sustainability projects. And this is a great place where I can apply my academic knowledge. And I am obsessed with his objective, like safety first and production next. Here I can gain my deep knowledge with experienced people. That's why I want to join NPCIL. Okay. So do you know how many plants are there in India of NPCIL? So, Working plants. so operational plants are 24. NPCIL operational plants are 24. 24. Yeah. So which is the largest plant by capacity? So I don't have idea. Okay. So any idea like what is the contribution of NPCIL in the total energy generation of the country? Sir, I think almost 1,800 megawatt. No, percentage wise, I mean, like Sir, 10%, 5%. Any such idea? no, sir. Okay, so that 1,000 which you are saying, that is the total capacity of all the 1,800. plants. Yes, sir. What is 1,800 megawatt. megawatt? Okay, so any idea like what is the fuel they use So uranium. mostly? Mostly they are using uranium fuel. Uranium Which isotope of 235. uranium? 235 or 238? Uranium 235 they are using. Okay, so can you tell me why uranium 235 they prefer over uranium 238? So it's because this is feasible. Uranium 235 is feasible and it can participate in chain reaction of fission, whereas uranium 238 is fetal material, not a fissile material. Brittle material, you said. Yes, sir. Like it can't go in chain reaction. Okay, okay. That's good. So
if I ask you, let's say, suppose if I have 1 gram of uranium, Sir, so how much electricity we can produce from 1 gram of uranium? Approximate. Any idea? no, sir. Okay, okay, no issues. So in the nuclear, which nuclear reactor they use in NPCIL? Which type of nuclear Sir, reactors? they are using mainly two types of nuclear reactors, like uh, pressurized wet, pressurized reactor, and another is a boiling water reactor. Okay, so can you tell me the difference between these two from a working principle point of view? Okay, sir. In pressurized reactor, there is a two loop and there is a one heat like steam generation device. But in a boiling reactor, there is not a heat generator. Like it will directly convert water to steam in boiling water reactor. So if we talk about the safety point of view from nuclear radiations and all, which of these two is better? So from safety point of view, like boiling water reactor is better because in pressurized reactor there is a high pressure at the starting, and it will go by down to produce steam. But by efficiency wise, I think pressure reactor is more useful than boiling. Okay, so this is your thought or you have read this somewhere? Sir, I read about efficiency and that pressurized reactor is This more. safety point of view which I asked. So this is your own thought or you have read the same thing somewhere? Sir, the first was my own thought. Okay, because I have this follow-up question here. Like in pressurized water reactor, there is a heavy water Yes, which is in contact with the nuclear yes, reactor. So whatever nuclear energy, heat energy is produces due to reaction, that is absorbed by the heavy water, yes, sir. and then this heavy water enters into the, which you said, steam generation chamber or boiler, Yes, you can say, where this heavy water is transfer its heat to the normal water, which converts into the steam. yes, Correct? yes, But in case of boiling water reactor, there is no heavy water as such. That normal water is in direct contact with the nuclear reactors that yes, absorbs the heat of reaction from the new chemical reactions directly and yes, converts into steam. So yes, sir. chances of having radioactive trace of radioactive materials or the radiation in this boiling water reactors are more. In case of steam, actually, if we say, Yes, sir. Like, uh, are you talking about more units? Like in pressurized reactor, we are using more units. Like steam generator because is a extra main unit. thing is steam now. If steam is contaminated with radioactive materials or if any single even 1 ppm trace is there, you understand that steam is going in turbines, and then Uh, that exhaust steam is also going in condensers, and then condensers cooling water, cooling towers, so many stuffs are there, everything is connected, you know. sir. So Yes, sir. chances of radiation or leakage are more in this case, yes or no? Yes, sir. In this case, is more. Like, Then why? sir, sir, directly we can't say like chances is more because in boiling water reactor also we are using directly steam that is coming from reactor. That is what I So, was saying. so there will be high chance, but actually, frankly, I don't have an idea like very chance high because Oh, then you should not say at the start when you answer this for the first time. You should say like this, sir. I don't know, but as per my POV or my opinion and my thought, this could be the case, or something like you should say. Okay, yes, sir. so that the other person have the better clarity that yes, you are not sure, and they will not ask you the many follow-up question on that. Yes, And the best thing will be if you can avoid such thing, then simply say no idea. yes, sir.
Anyways, hello. Then your first two subjects are heat transfer and mass transfer. You said. हाँ yes. Okay. So one last question I will ask. In this nuclear reactors which you said, so if I ask you from fluid mechanics point of view, what are the topics or concepts you think we can use in all this setup? Uh, Just a name. I don't need the explanation. I just need the name of those concepts like Reynolds. Let me give you an example like Reynolds number we can use, Nusselt number we can use, Sherwood number. So in this way, which concepts of fluid mechanics we can use? like so we can use pump concept also here because the air pumps are using, and there is a pipe, there is a flowing pipe, so we can use a friction losses also. We can consider friction losses. So we can use and for finding the flow of fluid, we can use laminar and turbulent concept also here. And Hagen-Poiseuille equation or Darcy equation we can use here to find friction losses. Okay. So your Darcy equation you said. What is Darcy equation? So it tells about the friction losses, the fluid flowing in a pipe. Okay. So is there any difference between Darcy equation and Darcy-Weisbach equation, or both are same? Sir, don't have idea about it. Okay. No issue. Darcy equation, Darcy principle we use mainly for the fluid flow through porous media. Yeah. Anyways, so okay, fine. I will come to you later. So Ankur sir, हाँ श्योर सर. his first two subjects are heat transfer and mass transfer. He said. Yes. सो आर्यन कैसे हो? सब बढ़िया? Yes sir, बढ़िया. ठीक है, चलो बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. हीट ट्रांसफर और थर्मोडायनेमिक्स में क्या डिफरेंस है? Sir, in heat transfer, here we talk about the modes of heat transfer, how it is transferring through the different mediums. Whereas in आवाज कट thermodynamics, रही है आपकी. आवाज कट रही है, रिपीट करो एक बार. hello sir, आवाज आ रही है? अब आ रही है, बोलो. हाँ सर, मैं बता रहा था कि हीट ट्रांसफर में अपन मोस्टली हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है डिफरेंट मीडियम से उसकी स्टडी करते हैं, लाइक कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, एंड वी टॉक अबाउट द हाउ we can exchange heat between two fluids. Whereas in thermodynamics, we talk about the laws of thermodynamics, like how energy is converted to another energy. Like energy can't be destroyed and generated. We can like it can convert to one form to another form. We study about it. So there's the difference. हीट ट्रांसफर में हम किस चीज की बात करते हैं जो थर्मो में नहीं करते? सर भी मतलब हीट ट्रांसफर में अपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर्स की बात करते हैं, लाइक कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन. वेयर इन थर्मोडायनेमिक्स में अपन इन चीजों की बात नहीं करते, मतलब कैसे हो रहा है हीट ट्रांसफर, कैसे हो रहा है, रेडिएशन के थ्रू हो रहा है, कंडक्शन के थ्रू हो रहा है, तो दो फ्लूइड्स कैसे एक्सचेंज कर पा रहे हैं हीट को. वी टॉक दिस इन हीट ट्रांसफर, नॉट इन थर्मोडायनेमिक्स. नहीं, एक बार डिफरेंस दोबारा बताओ, क्या डिफरेंस था? हिंदी में बताओ. सर डिफरेंस ये था कि हीट है उसमें हम जनरली मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर की बात करते हैं. ट्रांसफर कैसे? अरे तो ये डिफरेंस नहीं है भाई.
तुमने पढ़ा है या बस तुक्के से बता रहे हो अपने आप, अभी अभी के अभी बनाया आंसर, या तुमने पढ़ा है? लाइक सर ये तो मतलब ऐसे जनरल है कि मतलब डिफरेंस क्या होता है, ऐसे एग्जैक्ट डिफरेंस कोई अगर है तो वो तो नहीं, पर मैं मतलब ऐसे बता रहा हूँ जितना मैंने पढ़ा है उस किसी हिसाब भी से। हीट ट्रांसफर की बुक में पहले ही पेज पे ये लिखा हुआ है, हीट ट्रांसफर और थर्मोडायनेमिक्स में क्या डिफरेंस है। हर हीट ट्रांसफर की बुक में लिखा हुआ है। तुमने कोई बुक पढ़ी है हीट ट्रांसफर के लिए? सर हाँ बुक, लाइक हाँ बुक तो पढ़ी है सर। तो हर बुक मतलब के ऐसे पहले पेज पर लिखा होता है एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। चलो कोई बात नहीं। कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर के बारे में बताओ। सर यहाँ पे हीट ट्रांसफर इज बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स और थ्रू बल्क फ्लो, मतलब ठीक है, अ, इस वजह से होता है। चलो कोई बात नहीं। हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर याद है? नो सर। बट हीट ट्रांसफर इज योर फर्स्ट सब्जेक्ट ना। यस सर, पर मतलब ऐसे परफेक्ट नहीं पता मेरे को ये। थर्मल बाउंड्री लेयर? नो सर। फिन्स? यस सर। फिन्स के लिए एनर्जी बैलेंस लिखो। सर डेरिवेशन तो नहीं पता। हीट ट्रांसफर फर्स्ट सब्जेक्ट क्यों रखा है फिर, फिफ्थ पे रखना था ना। सर डेरिवेशन तो मतलब डेरिवेशन तो मैंने नहीं किया है किसी का भी। डेरिवेशन में पूछ ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ एनर्जी बैलेंस लिखना है। मैं डेरिव डेराइव करने को बोल ही नहीं रहा हूँ। आई एम लाइक जस्ट सर सेइंग राइट ऑन एनर्जी बैलेंस। अच्छा मतलब सर लाइक उसमें तो दो टाइप से होता है एनर्जी बैलेंस, मतलब एनर्जी उसमें फिन्स में लाइक फर्स्ट कंडक्शन होता है और दूसरा कन्वेक्शन होता है। तो अगर अपन पार्शियल उसकी किसी भी पॉइंट पे करें तो इन माइनस आउट इक्वल्स टू कॉम्बिनेशन होता है, तो डेल्टा एक्स में लेके अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। लिख के दिखाओ, लिख के। अप्लाई एनर्जी बैलेंस ऑन द फिन। डराइव कुछ नहीं करना है, सिर्फ एनर्जी बैलेंस लगाना है। सर नो सर। हम्म। सर नहीं पता मेरे को। क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन का ग्राफ बना दो। दिख नहीं रहा यार। सर एक मिनट, वाइट पेज पे बना। व्हाइट पेज पे करो। कितने सर? ये तुमने ओरिजिन से स्टार्ट किया है, 0 0 से? यहाँ से स्टार्ट कहाँ से किया ग्राफ? 0 0 से स्टार्ट किया है? मतलब रेडियस से, इनिशियली रेडियस से। इनिशियल रेडियस से तो नहीं है ये। हाँ मतलब सर जीरो जीरो यहाँ कोऑर्डिनेट है, बट ये जो R1 है, जैसे कोई होलो सिलेंडर है तो उसकी जो इनिशियल रेडियस है वहां से है ये ग्राफ। मतलब मैंने बनाने में ऐसे बनाया है, पर दोबारा बनाओ फिर, सही से बनाओ दोबारा। इनिशियल रेडियस से बनाओ। बना नहीं अभी तक? सर दिख ये रहा ना। ये तुमने एक इनिशियल रेडियस से स्टार्ट किया है, उसके बाद हाँ ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। हाँ। ऊपर की तरफ जाने का मतलब कि रेडियस इंक्रीज कर रहा है। सर हीट लॉस इंक्रीज हो रहा है। रेडियस इंक्रीज नहीं हो रहा है। हाँ रेडियस भी इंक्रीज हो रहा है साथ में, और हीट लॉस भी इंक्रीज हो रहा है। ये जो रेडियस इंक्रीज हो रहा है, ये किसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है? सर इंसुलेशन का। इंसुलेशन, बेसिकली इंसुलेशन की थिकनेस हाँ तुम ऐड करते जा रहे हो। सिलेंडर का रेडियस तो उतना ही है जितना था, ऊपर से तुम हाँ हाँ। इंसुलेशन लगाते जा रहे हो। तो यस सर। जैसे जैसे इंसुलेशन लग रही है तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब हीट लॉस बढ़ रहा है। यस सर। उसके बाद हीट लॉस बढ़ते बढ़ते ये पहुंच गया एक मैक्सिमम पॉइंट पे, हाँ यस सर। और मैक्सिमम पॉइंट से पहुंचने के बाद ये नीचे की तरफ जा रहा है फिर।
यस सर। मतलब एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद, क्रिटिकल वैल्यू पे जाने के बाद, अगर हम इंसुलेशन को इंक्रीज करते हैं तो हीट यस सर। लॉस डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। हाँ यस सर। तो पहले इंक्रीज कर रहा है और बाद में डिक्रीज कर रहा है, इसका रीजन बता दो। सर इनिशियली में जब अपन इंसुलेशन लगाते हैं तब सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो रेजिस्टेंस कम डोमिनेंट होता है, तो एरिया बढ़ने से हीट लॉस इंक्रीज होगा। आफ्टर ए क्रिटिकल पॉइंट रेजिस्टेंस डोमिनेट करने लग जाएगा इसमें, तो हीट लॉस डिक्रीज होने लग जाएगा। कुछ नहीं समझ आया, दोबारा बताओ। सर जब इंसुलेशन अपन इंक्रीज कर रहे हैं बिफोर क्रिटिकल रेडिएशन तक, तब तक एरिया बढ़ेगा उसका, जब अपन किसका? इंसुलेशन सिलेंडर का सरफेस एरिया हम्म, बढ़ता जाएगा, बढ़ तो गया। उसकी वजह से हीट लॉस भी इंक्रीज होगा। क्यों? अब सर वो एरिया बढ़ रहा है तो ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा उसको, हीट ट्रांसफर एरिया मिलेगा। रेडियस कंडक्शन रेजिस्टेंस भी तो बढ़ेगा थिकनेस बढ़ने सर से, इंसुलेशन आने से। आफ्टर ए क्रिटिकल पॉइंट डोमिनेंट रेजिस्टेंस नहीं, करने आफ्टर लग नहीं, जाएगा। बिफोर की बात करो पहले तो। बिफोर में तुम इंसुलेशन बढ़ा रहे हो, तो रेडियस हाँ बढ़ रहा है, तो उससे कंडक्शन रेजिस्टेंस भी तो बढ़ रहा है। ये सर कंडक्शन रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है उसमें। तो फिर तो फिर रेट क्यों बढ़ेगा? अ, सर कंडक्शन रेजिस्टेंस के साथ सरफेस एरिया भी बढ़ रहा है सर। हाँ, सरफेस एरिया बढ़ रहा है, आई एग्री। बट मुझे बताओ ना कि कंडक्शन रेजिस्टेंस भी तो बढ़ रहा है। तो तुम कह रहे हो कि रेट ऑफ हीट लॉस बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ जाएगा जब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो? सर may I take some time कुछ थोड़ा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं अभी सोच नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं। अच्छा, ठीक है। इंसुलेशन की जनरली मैक्सिमम थिकनेस कितनी हो सकती है? सर मतलब वो सिलेंडर के लिए तो क्रिटिकल थर्मल रेडियस ऑफ कट। इंसुलेशन की बात कर रहा हूँ मैं, कि क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन की जनरली मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? क्रिटिकल रेडियस ऑफ थिकनेस की मैक्सिमम वैल्यू। सर ये रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी टू हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट के इक्वल। तो फिर वो तो मुझे भी पता है फॉर्मूला, तो के इंसुलेशन बाय एच होता है, बट मैक्सिमम वैल्यू क्या है? लाइक एच की वैल्यू जनरली कितनी होती है, के की वैल्यू जनरली कितनी होती है, तो दोनों का रेशो जो है उसकी वैल्यू जनरली कितनी होती है, वो पूछ रहा हूँ। रेडियस ऑफ इंसुलेशन की जनरल वैल्यू पूछ रहा हूँ। सर नहीं पता। ठीक है। मास ट्रांसफर में डिफ्यूजन ऑफ ए नॉन डिफ्यूजिंग बी केस पढ़ा है हाँ यस सर। फॉर गैसेस। यस सर। डेरिवेशन कर दो फ्लक्स की। हाँ यस। क्या हुआ, इतनी सी डेरिवेशन थी, बाहर है सर गए? नहीं नहीं हो गया सर, बस एक मिनट। थोड़ा और पास लाओ। ऊपर करो, पास लाओ, पास लाओ। और ऊपर करो, पास लाओ। ये तुमने जो फॉर्मूला निकाला है DAB बाई RT, P बाई यस डेल्टा सर। टी, किसका फॉर्मूला निकाला है? क्या सर? ये फॉर्मूला किसका निकाला है? सर मैंने फ्लक्स का इक्वेशन सोल्व किया है ना डीएनडी इसका के लिए। सिंबल क्या लिखा है तुमने? एन ए। Na, दिखाओ, दोबारा दिखाओ। थोड़ा नीचे करो, और नीचे करो।
जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे तुमने जब फिक्स लो लगाया जे ए इज इक्वल टू माइनस डी ए बी डी सी ए बाई डी जेड, इसके यस सर। बाद क्या किया इस अगले स्टेप में? जो फिक्स लो लगाया था तुमने उसके नीचे क्या लिखा है? सर वो मैंने उस इक्वेशन में रख दिया जो अपनी फ्लक्स इक्वेशन होती है ना, एन इक्वल टू जे प्लस क्या लिखा है बोलो एक बार। एन इक्वल टू जे प्लस वाई ए एन ए प्लस एन बी। हाँ, इसमें जब क्वेश्चन तुमने रखी फिक्स लो की, उसके बाद क्या लिखा है वो पढ़ो ना। फिर सर उसके बाद में जैसे यहाँ नॉन डिफ्यूजिंग बी के लिए तो एन बी जीरो रख दिया था, हम्म। डी बी के लिए, और जे की वैल्यू माइनस डी ए बी डी सी ए डी जेड कर दिया था। हम्म। उसके बाद में फिर अपने को इसमें मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में, वाई ए के टर्म्स में और वो कंसंट्रेशन के टर्म्स में, तो सी ए को मैंने चेंज कर लिया था आइडियल हम्म। गैस फ्लो से। हम्म। तो वो फिर वो पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में आया था, तो पार्शियल प्रेशर को मैंने मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में चेंज कर लिया था, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन करके। जो तुम्हारा फिर डेरिवेटिव था डी वाई ए बाई डी जेड, ये जो डेरिवेटिव हाँ था, हाँ इसका हाँ डी जेड कहाँ गया? सर, डेल्टा जेड मैंने लिख तो रखा है नीचे, मतलब नीचे मैंने नहीं, डायरेक्ट लिख, ऊपर। सर वो मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके लिखा नहीं है, मतलब डायरेक्ट मैंने इंटीग्रेट करके डेल्टा जेड इंटीग्रेशन ही करके लिखा है। लिखो, अगर इंटीग्रेशन करो ना भाई, इंटीग्रेशन क्यों नहीं कर रहे हो तुम? और मैं सर मतलब सोचा थोड़ा टाइम कम है तो इस वजह से थोड़ा किसने जल्दी किसने करके बोला लिखा। टाइम का? एक डेरिवेशन तो कम से कम अच्छे से करो यार। जब डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेट हो रही है, डी वाई एक तरफ डी जेड एक तरफ, वो वाला स्टेप लिखो। यस सर यस। लिख लिया इंटीग्रेशन का स्टेप? हाँ इंटीग्रेशन का तो लिख लिया सर। उससे एक स्टेप यहाँ और तक, लगेगा, लिख लो बस। दिखाओ ये दिखाओ। यहाँ तक तो लिखा है। ये तुमने जब डीजेड को उधर लेकर गए एन ए के पास, यस सर। तो इंटीग्रेशन एन ए डीजेड का नहीं होगा? तुमने एन ए इंटीग्रेशन डीजेड लिखा है। हाँ यस सर। ठीक करो ना इसे फिर। इंटीग्रेशन ऑफ एन ए डीजेड होगा ना। सर बाद में कांस्टेंट हो गया? सर, वो तो एन ए तो बाद में बाहर आ ही जाएगा ना, तो क्यों? इंटीग्रेशन से। क्यों? सर लाइक वो तो मास फ्लक्स लाइक पर यूनिट एरिया में पर सेकंड में कितना मोल फ्लो हो रहा है, तो तो कांस्टेंट, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। क्यों? Why the molar flux is constant? कोई रीजन तो होगा। सर मतलब रेट हमने है assumption तो। में तो नहीं लिखा। जब assumptions करते हैं फिक्स लो की, स्टडी स्टेट बोला, टेम्परेचर कांस्टेंट बोला, प्रेशर कांस्टेंट बोला, आइसोथर्मल आइसोबारिक, डीएबी को कांस्टेंट बोला, यूनिडायरेक्शनल फ्लो बोला, सब कुछ बोला। वहां पर ये तो नहीं लिखा कि मोलर फ्लक्स भी कांस्टेंट लेना है। ये तो कोई assumption नहीं थी फिक्स लो की। जिस भी चीज को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बाहर किया जाता है, तो उसको प्रॉपर रीजनिंग दी जाती है। अगर डीएबी को तुमने इंटीग्रेशन के बाहर लिखा है, तो फिक्स लो की assumption है कि डीएबी इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू जेड। टेम्परेचर को बाहर लिखा है तो assumption है प्रोसेस इज आइसोथर्मल। जिस भी चीज को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बाहर लिखेंगे तो assumption है, एक बेस है हमारा। मोलर फ्लक्स की कांस्टेंट है। सर बिकॉज एरिया कांस्टेंट है उसका ना, किसका? जो जहाँ से मोल जैसे डिफ्यूजिंग हो रहा है, नॉन डिफ्यूजिंग भी हो रहा है, जहाँ से डिफ्यूज हो रहा है, तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो तो अपना सेम ही है, तो वो चेंज नहीं हो रहा ना। कहाँ से कहाँ तक? सर जो लेयर है लिक्विड की से दूसरे पॉइंट तक जो ऊपर में एयर में जा रहा है। अगर एरिया कांस्टेंट है तो भी मोलर फ्लक्स क्यों कांस्टेंट है? ये वही तो पूछ रहा हूँ कि एरिया कांस्टेंट होने से मोलर फ्लक्स क्यों कांस्टेंट हो जाता है?
फ्लक्स क्या होता है? सर किसी पॉइंट पे पर यूनिट एरिया और पर सेकंड में जितना मोल फ्लो या मास फ्लो हो रहा है वो फ्लक्स है। तो अगर पर मीटर स्क्वायर तुमने कांस्टेंट कर भी दिया, तुम्हें क्या पता पर सेकंड में किलोमोल कांस्टेंट है या नहीं? हाँ ये सर, मतलब ये डिपेंड करता है कि मतलब वो कितना इवेपोरेट हो रहा है वहां से। वही कह रहा हूँ ना, तुमने एरिया कांस्टेंट कर दिया, हाँ बट पर हाँ सेकंड में जो किलोमोल डिफ्यूज हो रहे हैं वो कांस्टेंट है क्या? सर, वो मतलब वो कांस्टेंट तो नहीं हो सकते, वो इवेपोरेशन पे डिपेंड करता है, इवेपोरेशन रेट कितना है। अगर इवेपोरेशन रेट ही कांस्टेंट है तो कांस्टेंट होगा वो। तो रेट क्यों कांस्टेंट है, उसका क्या रीजन है? या तो इसे फिक्स लो के अजम्पशन में लिख दो, नहीं तो इसका प्रूफ दो। पॉइंट समझ रहे हो मेरा? यस सर, मतलब अजम्पशन में ही लिखना पड़ेगा, मतलब अज्यूम कर रहे हैं अगर अपन एज्यूम तो नहीं कर रहे हम, एज्यूम नहीं करते इस बात को, इस चीज का प्रॉपर प्रूफ है, बुक्स में नहीं दिया गया कहीं पे। बच्चे बस ऐसे याद कर लेते हैं, हाँ भाई बाहर है तो बाहर है। क्यों बाहर है भाई? तुम्हें आज पता है इस बात का या नहीं पता है? इसका तो नहीं पता। अच्छा ठीक है, फिल्म थ्योरी के assumptions बता दो। सर वो जब इंटरफेस होता है तो वहाँ दोनों साइड फिल्म होती है, तो मास ट्रांसफर केवल फिल्म ही होता है। जो गैस साइड में होगा तो गैस साइड फिल्म में होगा, और उधर लिक्विड साइड की फिल्म में। और मुझे स्टेडी स्टेट। प्रॉपर प्रॉपर बताओ ना, मास ट्रांसफर टेक्स प्लेस विद इन द फिल्म ओनली, ये सर, so या फिर फॉरगेटिंग दोनों? mass transfer takes within the film, and there is a steady state mass transfer. व्हाट डू यू So मीन like, बाय स्टेडी स्टेट मास ट्रांसफर? so like uh, uh, it's not changing with time. Like at the time, at every point, the mass transfer is same. व्हेन यू से मास ट्रांसफर इज सेम, व्हाट इज सेम? Like a flow rate at the every point at a single फ्लो time. रेट, Ah, yes sir. The flow दिस rate इज is नॉट same. फ्लूइड फ्लो, Yes sir. दिस इज नॉट फ्लूइड फ्लो, व्हाई आर यू टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ फ्लो रेट? Sir, I'm not talking in terms of flow rate. You can say in the concentration gradient also. Like you can say in the terms of concentration gradient also. So it's a mass transfer. Gradient is same, you are saying Yes, sir. concentration gradient is same with respect to Time. time, Yes, but sir. as the mass transfer takes place, the concentration at the point 1 will decrease and at the point 2 will increase. How will you can say that the concentration gradient is same? The process will achieve the equilibrium na ultimately, and Yes. equilibrium means that both the sides have the same potential. Yes, sir. So concentration gradient is not same. Yes, sir. Like concentration gradient not same, but uh, like What is same then? You said na sir, that with respect to time mass transfer is same. When you say mass transfer is same, mass transfer is same means what? What is same? What happened? sir, like at the fixed point, at the fixed time, at Hmm. every point, Uh, the mass transfer rate is same. Like at rate is same. Rate. Say rate. yes, sir. I use proper words. Mass transfer is same means nothing. Mass transfer rate is same. Yes, sir. Okay. Next assumption. Sir, only like these are the two major assumptions, like mass transfer taking place in film and statistic mass transfer. No, there are more assumptions. Sir, I know only two of these. You know the result of film theory? Yes, sir. Like mass transfer coefficient was to the diffusivity ratio rho thickness. Mass transfer coefficient is equals to dAV by delta. Yes, sir. And this result came from Came from sir, वहां से मास ट्रांसफर से मतलब जो
मास ट्रांसफर अकर हो रहा है ना इस पे लिक्विड साइड, और उसकी रेट सेम हो जाएगी। देयर इज अ डेरिवेशन ऑफ फिल्म थ्योरी। यस सर। In this derivation, the last step is KL is equals to dV by delta. हाँ I'm यस सर। asking the step above it, just ऊपर वाला, मतलब ये फॉर्मूला कहाँ से आया? KL equals to dV by delta किस एक्सप्रेशन से हमने लिखा था फिल्म थ्योरी में? फ्लक्स के एक्सप्रेशन से लिखा था। हाँ यस सर, वो तो मैं पहले बता रहा था ना आपको कि रेट जो फ्लक्स हुई थी, जो लिक्विड साइड का ट्रांसफर मास ट्रांसफर हो लिख रहा दो था। फिर, जी। लिख दो फिर। यस सर, यस सर। ये सर, जो दोनों का मास ट्रांसफर रेट इधर इक्वल। ये क्या लिखा है तुमने? सर जो मैंने क्या पूछा है? कौन सी थ्योरी पूछी है मैंने? फिल्म थ्योरी सर। और ये तुमने कौन सी थ्योरी के लिए लिखा है? सर मैं जनरल लिख रहा हूँ, जो इंटरफेस बनता है उसके ये कौन सी थ्योरी के लिए लिखा है? फिल्म थ्योरी के लिए लिखा है, पर जनरल लिखा है मैंने, मतलब। ये फिल्म थ्योरी के लिए नहीं लिखा तुमने। मैंने फिल्म थ्योरी पूछी है, तुम किसके लिए लिख रहे हो? मैं इंटरफेस मास ट्रांसफर का थोड़ा रेफरेंस लेके। ये टू फिल्म थ्योरी के लिए लिखा है तुमने। यस सर, मैंने क्या हाँ, टू पूछा? फिल्म थ्योरी, ओनली फिल्म थ्योरी। तो फिर उसके लिए फ्लक्स का एक्सप्रेशन पूछा मैंने तो। मैं पूछ क्या रहा हूँ, तुम बता क्या रहे हो? मैं लिखने को कुछ और बोल रहा हूँ, तुम लिख कुछ और रहे हो। फिल्म थ्योरी के लिए फ्लक्स का जो फाइनल एक्सप्रेशन होता है, मैं तो वो पूछा है। सर नहीं पता। I don't- आर्यन, प्रॉब्लम क्या है? आर यू नॉट प्रिपेयर्ड? बिकॉज किसी भी क्वेश्चन का तुम आंसर नहीं कर रहे हो, चाहे वो सर हीट में हो चाहे मास में हो। एक्चुअली सर, मैंने प्रिपरेशन तो ज्यादा नहीं किया, बट इस वजह से इंटरव्यू दे रहा हूँ कि मतलब थोड़ा ज्यादा ही नर्वस था मैं, तो। दैट्स ओके, बट प्रिपरेशन करनी चाहिए ना आपको। मतलब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है एनपीसीएल में इंटरव्यू देने की, तो आपको तो पूरी तैयारी करनी चाहिए, पूरी मेहनत करनी चाहिए। सर कम से कम के दो सब्जेक्ट्स तो आपको बिल्कुल ऐसे रखने चाहिए कि उसमें से कुछ भी पूछ लो आप बता पाओ। सर एक्चुअली मैंने प्रिपरेशन किया था, लाइक हीट ट्रांसफर में हीट एक्सचेंजर किया था, और इधर फ्लूइड मैकेनिक्स में पंप किया था। पीएसक्यू का एग्जाम थोड़ी देने थोड़ी जा रहे हो, इंडियन ऑयल का इंटरव्यू थोड़ी ना है जो तुमसे बस हीट एक्सचेंजर पूछेंगे, मास ट्रांसफर में डिस्टिलेशन पूछेंगे। एनपीसीएल है बाबा। एनपीसीएल का, डीआरडीओ का, इसरो का, बीआईएस का, बार्क का, इन सब का इंटरव्यू अलग होता है। ओएनजीसी का, आईओसीएल का, पीडीआईएल का, नालको का, इनका इंटरव्यू अलग होता है। इंडस्ट्री के अंदर थोड़ी सर मतलब वो थोड़ा क्या था, जनरली जा रहा था मैं ऐसे देने, तो मतलब ऐसा कोई सीन नहीं था, तो मैंने सोचा कि मतलब जो मोस्ट मोस्ट टॉपिक्स है वही मैंने प्रिपेयर किए थे इनके लिए, जैसे थोड़ा। रेक्यूपरेटर्स और रीजनरेटर्स में क्या डिफरेंस होता है? क्या सर? रेक्यूपरेटर्स और रीजनरेटर्स में क्या डिफरेंस होता है? सर नहीं पता। ये हीट एक्सचेंजर का क्वेश्चन है। रेक्यूपरेटर वर्ड सुना तुमने? नो सर। तो हीट एक्सचेंजर के टाइप्स भी नहीं पता होगा तुम्हें? हीट एक्सचेंजर के सर वैसे टाइप्स तो पता है, मतलब। टाइप्स पहले तो दो आते हैं, हीट एक्सचेंजर और टू टाइप्स, रेक्यूपरेटर्स एंड रीजनरेटर्स। यही से तो नीचे शुरू होता है सब कुछ। वही तो कह रहा हूँ बाबा, कैसे काम चलेगा ऐसे? कब है इंटरव्यू आपका? सर मेरा तो नो को है। आज तो 6 हो गई, अब तो कोई यस। चमत्कार भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्या बोले, यही बोल सकते हैं कि भाई अपने आप को रेडी रखा करो, है ना? क्योंकि आज ये अपॉर्चुनिटी मिली है एनपीसीएल में इंटरव्यू, कल को कोई और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट जब तक आप रेडी नहीं रहोगे ना, तब तक अपॉर्चुनिटी कैश इन नहीं हो पाएगी। तो अपने यस। आप को डेली बेसिस पे टाइम दो, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, चीजों को पढ़ो, बेसिक्स को जानो। बहुत कुछ है जानने को, सीखने को, समझने को, है ना? यस सर। जितने भी क्वेश्चंस थे उनमें से किसी का भी आंसर कहीं ना कहीं सही नहीं था। तो यस सर। और ये टॉपिक्स है, तो दो सब्जेक्ट तो अपने बिल्कुल ऐसे रखो कि उनमें तो कुछ भी पूछ लिया जाए तुम बता पाओ, है ना? वो बहुत जरूरी है। यस सर।